Hello, welcome to the SafeTex podcast. I'm your host Shubham Jain, and today we are having a special guest named Hemant sir. Hemant ji spent years living in the US and then made the big decision to return back to India. In this podcast, we will hear his journey, the challenges, the turning point, and what life looks after moving back to India. Hemant ji, welcome to the podcast. It's an honor to have you with us. So, Hemant ji, how are you today? I'm fine today, and thanks for inviting me. Uh, I'm hoping that this podcast will help a couple of peoples at least. Yeah. So, sir, my first question is like, I want to know what was the turning point that when you decided you are going back to India? Okay. See, it's not first time. I was in US for 3.5 year or more than that. Even in Sweden for 2.5 year or more than that. So two times I went there in different year, and both times that I decided and to come back because of different reason. बट पहली बार में मुझे ये लगा कि ठीक है, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, तो क्यों ना मैं फिर 2-3 साल रुक के दोबारा किया, कि बहुत लोगों को रिग्रेट होता है आने के बाद, राइट? सो आई वाज थिंकिंग मे बी इट्स अ हरी डिसीजन, लेट्स गो बैक एंड सी इफ थिंग्स वर्क्स आउट. बट जो मेरे को लगा कि नहीं, एटलीस्ट इन माय केस, it is something, go explore, learn, take experience, and then come back and implement here. Okay, because ultimately peace of mind, family, everything is here. So I came back both the time. But if you are asking specifically for the US, so in US, I think everything was going fine. However, there was some emergency in family. Means some events were there. आना पड़ा, and the turning point was US visa is the most unstable visa I found. जिसका पता ही नहीं होता दोबारा लगेगा कि नहीं, रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा. एंड उसकी वजह से कुछ लोग एक एक दो दो तीन तीन साल तक घर नहीं आते हैं. एंड वो जो 2-3 साल का गैप होता है जिसमें आप घर नहीं आते हो, आपके सारे फेस्टिवल सब, फैमिली में कोई डेथ भी हो जाती है, फैमिली में कुछ शादी भी होती है क्लोज भाई बहनों की, वो भी मिस कर देते हो कि अगर गए तो रिन्यू नहीं होगा. तो मेरी फैमिली में कुछ ऐसा इवेंट था, मैं तो वापस आ गया ये सोच के नहीं होगा तो नहीं होगा. आई जस्ट केम बैक. Okay, so my turning point in US was the kind of or nature of visa, and especially in case of US. And you know what is going on currently, you know that, right? So that is the reason. Like, as you said, you lived in US. So I want to ask, like, if you have stayed in US, how, how different do you think your life would be? And is there any regrets after coming to India? See, first of all, life difference क्या होती? First difference, my kids will not be attached or might not be attached what they are attached with my parents, my sister, brother, my in-laws. तो ये different होती पहली चीज. Second, I would be missing everything what is important, at least for me. Third thing, yes, I would be financially better in US. That is also truth. Okay, so there are pros and cons both. Okay, so it might be I may have saved more money if I have not came back, but I have compromised in some other area जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. एंड रिग्रेट्स की बात करें, मुझे एज सच कोई रिग्रेट नहीं होता. फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम हैप्पी हियर. और डेली लाइफ में आई डोंट मिस एज आई शुड कम बैक, गो बैक. बट हाँ, एक चीज मुझे लगती है, वो भी मैं बोलूंगा कि जब यहाँ पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, स्पेशली दिल्ली में सर्दियों में, राइट, वो जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी, at that time I feel this is somewhere India should take the immediate steps and do something. Government should do something about it, because it's a every year problem. I know they are doing it and it's getting better day by day. They are building infrastructure, peripheral roads, and moving the industry outside the Delhi NCR. I know they are taking the steps, but the results are not up to the mark. That's what I say. Yeah. Okay, like,
life in the US is very different, and many Yeah. experiences are going there. So I want to know some experience from there, like that change your life, that change your mental thinking, how you think. Um, Two things I learned from there and I implemented. One is discipline. Second is time management. Okay. Discipline in something in terms of driving the car, in terms of holding the door for someone while you are moving out from the room. So I'm giving you very small example, but they are really matter in your personality. Okay. Yes. So discipline something, respecting each अदर, और किसी को किसी के स्टेटस या किसी के लुक से नहीं उसको वो करना, जज करना। तो एक चीज तो मैंने डिसिप्लिन सीखा अपनी लाइफ में, दूसरा टाइम मैनेजमेंट सीखा। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आई वाज इन मीटिंग, एक 5 बजे कोई मीटिंग थी मेरी। तो 5 बजने 5 मिनट थे, तो मैं रूम के सामने पहुंच गया क्लाइंट से, मैं बोलने लगा कि लेट्स गो इनसाइड द रूम। तो मेरे क्लाइंट ने बोला अभी 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में मैं अभी 2 काम निपटा के आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो 5 मिनट की वैल्यू मुझे पता चली। और वो जो कस्टमर था वो ठीक 5 बजे 1 मिनट लेट भी हुआ। तो वो मैंने अडेप्ट किया कि व्हेन आई वाज इन यूरोप, देन दे वर रिस्पेक्टिंग मी कि आई एम ऑलवेज ऑन टाइम एंड नॉट बिफोर और नॉट आफ्टर। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है, ये एक छोटा एग्जांपल दिया, लेकिन आपकी बहुत डेली बड़ी लाइफ चीज। में भी आप बहुत सारी सुबह से टाइम मैनेजमेंट जानते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम ही हर चीज के लिए आपने बकेट बना रखी है कि ठीक है, इतनी देर में मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, इस टाइम में बच्चों को छोड़ने जाऊंगा, इस टाइम में ऑफिस जाऊंगा, इस टाइम में। तो एक टाइम मैनेजमेंट मैंने जो सीखा वो मैंने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट बात है। किया। या Now the main very big question about is healthcare. So what do you think, like Indian healthcare versus US health? ओके, particularly for US, I think if I compare Europe versus US, US is far better. बट इफ आई कंपेयर इंडिया वर्सेस यूएस, तो वो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। पहली चीज ये है कि नॉट एवरीथिंग इज इमीडिएट, राइट? इफ इन यूरोप इट टेक्स अ मंथ टू टेक द अपॉइंटमेंट, इन यूएस इट माइट टेक अ वीक। ओके, एंड अगर आपको कुछ है या फिर इमरजेंसी में जाओ, Okay. बट इफ यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट, देन इट विल टेक अ वीक और मे बी मोर देन दैट। हो सकता है तब तक आप खुद से ही ठीक हो जाओ। ठीक है। दूसरा, यूएस का इंश्योरेंस इज पेड इंश्योरेंस, बिकॉज उसका एक कोपे होता है, उसमें एक पोर्शन आपको देना होता है लाइक 20%, या फिर एक फिक्स अमाउंट होता है, नॉट इन परसेंटेज बट इन टर्म्स ऑफ डॉलर। लाइक किसी डॉक्टर को विजिट किया, $100 उसकी फीस है, तो $20 आपको देने, उससे ऊपर $80 हो चाहे कितना भी बिल है वो लोग देंगे। Okay. ठीक है, इंश्योरेंस वाले। तो वहां का जो इंश्योरेंस होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए, जाए तो हर बार एक पर्टिकुलर फीस लगे। एंड yes, doctors are good. That's what I can say compared to Europe. But in India also, I cannot compare with whole India, because in India, if you go to small cities, then quality is very poor. But if you go to Delhi or Mumbai or big cities, then quality is far better. Even from US, sometimes it is better than US in some cases, not in all the cases. क्योंकि यहाँ पे immediate react करते हैं, at least in private hospital, right? So can you please share any experiences of yours in US? Like have you got any medical emergency there? Yes, what happened once, मेरे कान में कुछ हुआ था तो ब्लड आने लगा, तो मुझे डर गया कि कहीं कान का ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं वहां गया, तो उन्होंने मुझे 1-2 घंटे तो बाहर ही बिठा के रखा। एंड देन जब वो ब्लड देखा और ये वो, तो उन्होंने देखा इट्स नथिंग, राइट? तो और इसी तरीके से मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा पथरी का पेन था, तो वो अनबियरेबल था, तो उसको बहुत देर बाद बेड मिला। तो वो मेरे को लगा, लेकिन जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, जैसे कोई प्रेगनेंसी है, अब प्रेगनेंसी केस में वंस वंस ये डिसाइड हो गया कि हाँ भाई पता चल गया कि प्रेगनेंसी है, तो उसका जो शेड्यूल होता है कि इतने वीक के बाद आपको आना है, इतने अल्ट्रासाउंड होना है इसके बाद, वो बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छी है, बेटर देन इंडिया। इंडिया से बेटर है क्योंकि वहां पे ये नहीं लालच है कि मुझे सी सेक्शन ही करना है, बिकॉज वहां पर
नॉर्मल डिलीवरी पर ही जोर देते हैं, सी सेक्शन उस केस में करते हैं जब बहुत जरूरी होता है, उसके बिना काम ही ना चले, तो उस केस में वहां का बेटर है। अगेन कुछ चीजें वहां अच्छी है, कुछ चीजें यहाँ अच्छी है। Now the main question after returning to India, like how did your kids survive? What about their schooling, college part? Like, is there any hassles in there? ओके, सी रिगार्डिंग माय एल्डर किड, वो जब यहाँ पर आया तो 3 साल का था, पहली बार जब यूएस से वापस आए, तो उसको वहां पर तो एजुकेशन हुआ ही नहीं, यहीं पर सीधे हम लोगों ने प्री स्कूल में डाला था। तो इनिशियली उसने 2-4 महीने 6 महीने परेशान किया उसको जाने में आने में। आई थिंक वो कोई भी बच्चा करता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ चलो वहां का इम्पैक्ट था, यहाँ भीड़ ज्यादा होती है, यहाँ पर डिफरेंट एनवायरमेंट था, पर 6 महीने बाद उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हम लोग स्वीडन गए, तो स्वीडन में वो ऑलमोस्ट 5 साल का था, एंड वहां पर वो 2.5-3 साल पढ़ा। तो हम लोग ट्रेन से ही छोड़ने लेने जाते थे, तो उस वक्त भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि छोटे बच्चों की एजुकेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। प्रॉब्लम आती है जब बच्चे 6th-7th को क्रॉस कर देते हैं, तब बोर्ड का इम्पैक्ट आता है, आईबी बोर्ड हो, कैम्ब्रिज बोर्ड हो, या फिर इधर का या यूएस का डिफरेंट, तब प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पर्टिकुलर केस में जब वो सेकेंड टाइम वापस आया स्वीडन से, तब वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 साल का था। तब दिक्कत आई तो हिंदी में आई, कि हिंदी में उसे बोलने में दिक्कत नहीं थी, उसको पढ़ने में और लिखने में दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए हम 1-2 बुक्स ले गए थे, तो वहीं पढ़ाते थे जब भी टाइम मिल जाता था स्वीडन में। एंड देन जब वापस आए तो हम लोगों ने उसको अपने आप ही पढ़ाया। उसका आज तक ट्यूशन नहीं लगा है। ही इज नाउ 14 ईयर एज। तो हम लोगों ने माइग्रेट किया तब भी ट्यूशन नहीं लगाया, और नॉर्मल लाइफ में ट्यूशन हम खुद ही मेरी वाइफ और हम, तो हम दोनों मिलके खुद ही पढ़ा लेते हैं जो भी सब्जेक्ट आता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगा। Like, as we know, there is many cultural difference between US and India. So, is there any shock after coming back many years? Like, is there any shock regarding cultural? Have you faced that? देखो, कल्चरल, सबसे पहला तो आपको ट्रैफिक सेंस में सबसे ज्यादा लगता है, जैसे ही आप गाड़ी अगले दिन निकालते हो तो लेफ्ट राइट होता है वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग या राइट हैंड, ऐसा कुछ एक तो इश्यू होता है। दूसरा मैनर, सिविक सेंस का कल्चर शॉक में सबसे ज्यादा मिल जाएगा। हर चीज में साउंड है, हॉकिंग है, प्लस केओस है। बट मेरा ये मानना था इस केओस में ही लाइफ छुपी है, जिसके लिए हम वापस आते हैं। नहीं तो इतनी शांति थी वहां पर, इतना सब कुछ था, तो वो भी इतना बोरिंग हो गया था कि लाइफ में लगता था कुछ है ही नहीं। तो इनिशियली यस 6 मंथ वो सिविक सेंस इज द मेजर पार्ट, जिसमें कल्चर शॉक लगता है कि यहाँ पे कोई लाइन में नहीं लगता है, कोई वो रूल फॉलो नहीं करता है। एंड कुछ चीजें पॉजिटिव लगी यहाँ का, सबसे ज्यादा पॉजिटिव यूपीआई सिस्टम लगता है, हर चीज ऑनलाइन है, और हर चीज मतलब कल्चर शॉक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो पॉजिटिव शॉक तो अगर मुझे कार भी सर्विस करानी है, धुलवानी है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, बाहर बंदा आएगा, गाड़ी की चाबी लेके जाएगा, सब वेरीफाइड होगा, सर्विस भी होके घर पे गाड़ी आ जाएगी, बिल आ जाएगा, अपडेट्स आते रहेंगे सर्विसेज के कि अब इतनी हो गई, इतनी हो गई, अब गाड़ी आने वाली है। हर चीज ऐप बेस्ड है। तो वो ये इंडिया जो हमने छोड़ा था और जो आज इंडिया है, वो डिफरेंट है। सब कुछ डिजिटल होने के बाद अगर आप किसी बड़े सिटी में अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो कल्चर शॉक। अगर आप यूएस से आने के बाद किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में चले जाते हो, और हर चीज की इतनी, जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये अगर वहां अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका डिफरेंस होगा और डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, राइट। बड़े सिटी में अच्छी सोसाइटी में अगर आप रहोगे तो अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मिक्स था, बट इट वाज मोर मोर पॉजिटिव साइड। So, have you ever think about retiring in US, or it was decided that you were retired in India? सी रिटायरमेंट के केस में तो ये क्वेश्चन उल्टा ही होता है हमेशा। जो भी एनआरआई है, आर यू प्लानिंग फॉर इंडिया, क्योंकि रिटायरमेंट केस में आप वहां जाते हो जहां पे उन पैसों में ज्यादा चीज आए, आपके पास एक्स अमाउंट है। अब इवन यूएस का एग्जांपल देता हूँ, लोग कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं है और वहां पर सब कुछ सस्ता है, बट आईटी इंडस्ट्री नहीं है, तो जॉब करने रिटायरमेंट वहां। इसी तरीके से एनआरआई वापस इंडिया आना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी अगर मैं बोलूँ, तो अगर मुझ पे कोई, और उसके दो रीजन होंगे। पहला फाइनेंशियल, जो मैंने अभी आपको बताया कि मुझ पे उन पैसों में मैं ज्यादा काम कर इजीली रह पाऊंगा, मेरा खर्चा ही क्या होगा उस वक्त इंडिया में, राइट। जैसा था 2 लोगों का खाने पीने का, दैट्स इट। अपना घर है तो कोई इतना नहीं। और वहीं पे फैमिली फ्रेंड्स, अब आप रिटायर हो चुके हो, अब आप करोगे क्या पूरे दिन?
आप ये सोचिए, कितना यूट्यूब देखोगे, कितना ट्रैवल कर लोगे, एक ही जगह पे कितनी बार चले जाओगे। आप यू नीड योर ओन पीपल, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वेवलेंथ मैच होती है। आपको चाहिए आपके जैसे पुराने बचपन के दोस्त, आपकी फैमिली, आपके भाई-बहन। मेजरली इवेंट्स मीन्स डे है, किसी का कुछ है, आपका टाइम वैसे ही निकल जाएगा, फेस्टिवल है तो निकल। तो अगर आप रिटायरमेंट के लिए कोई सेकंड थॉट नहीं, इंडिया। इंडिया। सो अगर हम रिटायरमेंट इंडिया में कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक हाउ मच मनी इज इनफ टू रिटायर बैक इन इंडिया? ये क्वेश्चन यूट्यूब पर और इंटरनेट पे बार-बार पूछा जाता है और आज तक इसका सही जवाब कोई दे नहीं पाया। क्यों नहीं दे पाया? वो इसलिए नहीं दे पाया, मेरे लिए इनफ नहीं है, और हो सकता है कि मेरे लिए जो बिल्कुल इनफ नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। प्लस जो मेरी सिटी में इनफ है, वो आपकी सिटी में इनफ नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से एक जेनेरिक अगर मैं दूँ, ये एक कैलकुलेशन करनी चाहिए कि पहली चीज़ आप लोन फ्री होने चाहिए रिटायरमेंट पे, तो आपके ऊपर कोई ये बर्डन नहीं है मुझे किसी को पैसे देने। उसके बाद ये कैलकुलेट करना चाहिए कि 2 लोग जो बचेंगे, बच्चों को के बाद की बात कर रहे हैं हम रिटायरमेंट। तो 2 लोगों का खर्चा कितना होता है अपने घर में रहने के बाद, ये सोचना चाहिए। प्लस एक गाड़ी आपके पास है, तो आने-जाने का और ट्रिप मारने का कितना खर्चा होता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, कंसीडरिंग कि आप बेस्ट केस में 60 के बाद 90 साल तक जीते हो, 30 इयर्स, राइट? मोस्टली लोग 80 टू 90 के बीच में लाई करते हैं, बट मैं बेस्ट केस 90 उसमें भी ये मान के नहीं चल रहा कि बच्चों से हम सपोर्ट लेंगे, नहीं लेंगे, वो कैसे निकलेंगे। अभी तो मैं 30 ईयर का बस इतना, क्योंकि आप इतना ज़्यादा दिन बढ़ती है, राइट? तो डिपेंडिंग योर लाइफ़स्टाइल, खाने-पीने का शौक भी उतना नहीं रहता। मेन जो खर्चा होता है वो आपके हेल्थ का होता है। तो आप एक अच्छी पॉलिसी अभी से लेके रखो, क्योंकि बुढ़ापे में कोई पॉलिसी मिलेगी नहीं आपको। फिर लो लेके रखो, उसका नो क्लेम बोनस लग-लग के लग है। तो ये मेरा सजेशन है। तो कॉर्पस का अमाउंट, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप फिर भी कोई नंबर अगर आप सीक कर रहे हैं, तो आई थिंक एनीथिंग बिटवीन अबव 5 सीआर इज़ ओके आफ्टर Okay. रिटायर, या So, like, as you said, like you had, like you have spent many years in foreign. So, after returning from foreign, like, is there any shock regarding financial thing? Have you faced it in India? फाइनेंशियल थिंग। पहला शॉक तो ये होता है कि सी यू आर अर्निंग इन डॉलर, राइट? एंड नाउ सडनली इन इंडिया योर सैलरी आपकी कम। लेकिन इंडिया में भी अगर आप बैंगलोर, गुड़गांव, कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एट पार सैलरी भी कमा सकते हो। एट पार का मतलब ये नहीं है कि वहाँ की डॉलर में कन्वर्ट करो तो 10 लाख रुपए महीने हुई हो तो यहाँ भी 10 लाख नहीं, क्योंकि वहाँ पे दूध अच्छा, अगर तो वो 1/3 का है यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ता है। तो वहाँ के 10 लाख, यहाँ के 3 लाख रुपए महीने। वो टू मेंटेन सेम लाइफस्टाइल, राइट? तो वो अब यहाँ भी पॉसिबल है। तो फाइनेंशियली एक तो ये होता है कि मैच करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और बाकी तो मुझे लगता है अगर आप बेटर प्लानिंग करते हो, सही से सही टाइम पे चीज़ें खरीद लेते हो, स्टॉक्स में डाल देते हो, आप गोल्ड में डाल देते हो, या जिसमें भी आपका मन करता है म्यूचुअल फंड में, और उसको छेड़ो नहीं। रूल ये है, एक अमाउंट अलग निकाल लो अपने घर-वर खरीदने के लिए, और बच्चे की एजुकेशन हो रही है आपके मंथली खर्चे में। तो जो बाकी चीज़ें हैं, अगर आपने एक डिसिप्लिन बना के रखा कि आपने इन्वेस्ट करके भूल गए, उसको छेड़ा नहीं, तो एक दिन ऐसा है कि कोई भी स्टॉक ऐसे गोल्ड भागेगा, फिर रुक जाएगा। हो सकता है 1-2 साल को, अगर आपको चाहिए तो फाइनेंस का अलग से पॉडकास्ट एक अलग से कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ, फाइनेंशियली इफ यू प्लान वेल देन इट्स ओके। can you please share like one step every NRI returning to India should know about, like one advice from your side regarding finance? रिगार्डिंग फाइनेंस, ओके। सी एवरी एनआरआई व्हाट शुड डू कि अपना जो इंडिया के क्रेडेंशियल है वो अप टू डेट रखें। पहली चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिन्यूअल्स होते हैं, एड्रेस अपडेट कराना, अपना परमानेंट एड्रेस डालना, ये सब चीज़ें जब प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी लगती है कि हर चीज़ इतनी टफ है। तो उसको अप टू डेट रखें। अपना पीपीएफ अकाउंट है, ये है, हर साल उसमें एनपीएस है या कुछ भी जो गए हैं, जो चल रहा था यहाँ पे, हर साल उसमें 1000 रुपए साल में डालना पड़ता है जस्ट टू मेक इट एक्टिव। वो सब मेंटेन रखें अगर लॉकर। और दूसरा, आने के बाद अपने जो एनआरई एनआरओ अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट में विद इन 6 मंथ कन्वर्ट करा लें, और मेक श्योर कि आप एनआरई एनआरओ अकाउंट फॉलो, वो 180 डेज का कुछ होता है, तो वो रखें। प्लस वापस आने के बाद अपने पैसे को ऐसे पानी की तरह ना बहाएं।
कि कम, अगर आप यहाँ पे घर खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो 1 करोड़ भी कम है, 1 करोड़ ज़्यादा भी बहुत। यहाँ पर एक ही घर में आप 10 करोड़ का भी खरीद सकते हो और 2 करोड़ का भी ले सकते हो। तो बहुत सँभाल के यूज़ करें और कोशिश करें कि उसको इन्वेस्ट करके जो उसका मंथली इनकम आ रहा है, उसमें से खर्चा करो। कैपिटल को टच करना है तो उतना ही टच करो जिससे आप घर खरीद लो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया। सही आप रह रहे हो उसमें, आपके ऊपर लोन नहीं है, मान लो 2 करोड़, आपके पास 10 करोड़ है, मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। 10 करोड़ आप लेके आए। अब मेरा ये कहना है कि 10 करोड़ को आप किसी भी तरीके से ना वेस्ट मत करो। उसमें से 2 करोड़ निकाल के आपने घर खरीदा, बहुत बढ़िया। अब कोई ईएमआई नहीं आएगी, उसी में रह रहे हो, रेंट बच रहा है और 2 करोड़ वाला हर महीने 2-3 लाख बढ़ रहे हैं। 2-3 साल में वो 2 का ढाई हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ, तो ये खर्चा नहीं हुआ। फिर आपने जो महीने का उससे जो भी आप कमा रही है, ब्याज पे चढ़ा दिया, एसडब्ल्यूपी कर दिया मान लो, म्यूचुअल फंड में, महीने के 5 लाख आ रहे हैं। महीने का ज़्यादा इंडिया में नहीं होता है। तो जो बच जाए उसको फिर री-इन्वेस्ट कर, तो मतलब स्मार्टली अगर जैसे आप इतना फाइनेंशियली पूरे दिन जो मर्ज़ी आए करो, कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि आप कहाँ थे। Very well. So, do you feel more connected to people, to family, to community in India, if you are comparing with US? डेफिनिटली आई थिंक नो डाउट अबाउट इट। ये क्वेश्चन तो जिसे बोलते हैं ये आंसर इसका 99% यस ही आएगा अगर आप किसी से पूछोगे तो। 1% तो भी मैं छोड़ देता हूँ, कुछ इंट्रोवर्ट भी लोग होते हैं एंड दे हैव सम इश्यूज विद देयर फैमिली, दे डोंट वांट टू गो बैक। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें लोगों से मैं बात करता हूँ, वो लोग मुझसे सजेशन सुनने में आता है कि वो नहीं आना चाहते वापस, या फिर फैमिली इश्यूज ना होते तो आ जाते टाइप्स। तो मैं यही बोलूँगा कि यही तो मेन रीज़न है वापस आने का। बाकी तो फाइनेंशियली तो इतना कोई प्रॉफ़िट तो हो नहीं रहा, Same. और फाइनेंस अब नुकसान कौन करना चाहता है? नुकसान तभी कोई कर सकता है जब उससे प्रायोरिटी की कोई चीज़ मिले, राइट? तो आपको एक तरह का ट्रेड ऑफ हो रहा है कि ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा कम होगा लेकिन पीस कितना होगा माइंड का। आप सारी पेरेंट्स को एज होने के बाद यही नहीं कि कोई बड़ा अटैक या कोई बड़ी बीमारी की ज़रूरत है, नहीं, उनको आपकी ज़रूरत डेली लाइफ में है या हर मंथ है। रिचार्ज कैसे करना है, इसका पेमेंट कैसे करना है, यहाँ पे आके ये पुताई होनी है, ये डिस्टेम्पर होना है, ये व्हाइट वॉश होना है, ये इसके लिए 3 दिन की हेल्प चाहिए, यहाँ पर आके करा दो, है ना? ये डेली लाइफ की बात है। पेरेंट का सपोर्ट कर उनकी नॉर्मल लाइफ में, राइट? तो जिसमें वो बोलते नहीं है, बट आपको पके रहो उनके संग 2-4 दिन, कि अरे ये एसी खराब है, ये खराब है, गाड़ी सर्विस नहीं हुई। ये मेरा मानना है कि डेफिनिटली फील मोर कनेक्टेड इन इंडिया, एक्चुअली नो, यूएस में बहुत ज्यादा लग्जरी है इंडिया के, राइट? बट फिर भी एक स्मॉल ऐसी खुशी जो आपको सिर्फ इंडिया ही मिल सकती है और जल्दी से नहीं हो सकती। आह पीपल, ठीक है, पीपल अराउंड यू, मतलब मेरे बचपन रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कैसे? मान लीजिए आपकी वहाँ फ्रेंडशिप हो भी गई, अब मेरा एक ऐसा दोस्त बन गया जो दिन रात में मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में यूएस में रहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इंडिया की याद नहीं आ रही। सडनली क्या होगा, अगर आप दोनों टेनेंट हो, तो कोई एक उसकी जॉब कहीं और लग जाएगी। मान लो दोनों का खुद का ही घर है, कंपनी ने निकाल दिया, बेटर ऑफर आया, उसने दूसरी सिटी, यहाँ आपको ज़ीरो से दोबारा से किसी फ्रेंडशिप में जाने में 1-2 साल लग जाते हैं। भई आप कम्फर्ट ज़ोन में पहले दिन तो नहीं आ जाते ना। आप 4 बार इनवाइट करोगे, 2 बार वो इनवाइट करेंगे, कहीं घूमने जाओगे, फिर बॉन्डिंग वाइफ की बॉन्ड बनती है, तब वो फैमिली की बॉन्डिंग बनती है। मेन क्या है, बंदे-बंदे तो कोई नहीं, आपस में बैठ के थोड़ा सही बात है। हँसे-गाए हो गया, बच्चों के संग बॉन्डिंग बनने में। तो अगर वहाँ पे कोई फ्रेंडशिप की है, रिश्तेदारी है, और वो आपका सहारा है लाइफ, और वो ही चला जाए, तो अगला बनने में तो फिर 2-3 साल लगने ही नहीं, क्योंकि आपकी नहीं बनती ट्यूनिंग। नहीं लगेगा, सब कुछ होते हुए लगेगा यार बेकार है। तो ये मेरा आंसर है। Like many NRIs are still confused. Should they return back to India or should they stay there? So, what are your golden tips you want to give them to NRIs? See, first of all, sit down with your wife if you are married, or your husband, and write down on a paper, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, प्रायोरिटी वाइज है और क्या मिस कर रहे हो जो वहां मिलेगा, और उसमें आपकी टॉप 3 टॉप 5 प्रायोरिटी क्या है जिसके बिना काम चल सकता है। गुड टू हैव, मस्ट है मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, और गुड टू हैव वाला अगर वो इंडिया में है, और ओवरऑल अगर बना लिया है, और ये मानो नहीं, थोड़ा-सा कंट्रोल भी करो, अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें हैंडल करने की कोशिश करो। तो मेरी टिप, इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं, 1-2 साल रुको, फिर उसके लोन-वोन उतारने का,
देन अपना हैप्पीनेस इंडेक्स देखो कि आपको हैप्पीनेस कहाँ मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई भी काम करते हो इसी चीज के लिए। सही बात। पैसा भी कमाते हो इसलिए कि खर्च कर पाओ Yes. और उससे कोई चीज ले पाओ, घर ले पाओ, एंड देन हैप्पी रहो, है ना? तो अगर आपकी हैप्पीनेस यूएस या किसी जिस कंट्री में हो वहां पर है तो वहीं रहो, मत आओ वापस, और डायलेमा में मत रहो, तो तब तक एंजॉय करो, खुश रहो, वहीं रहो, खुश रहो। बट जिस दिन वो आपका मन में वो जिसे कहते हैं वैक्यूम आने लगे, और जो मन में जिसे कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक डिप्रेशन सा लगने लगे, तब बैठो, डिसीजन लो। और जैसे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, कई लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं, उनसे कंसल्ट करो, जो लोग आए हैं उनका केस देखो, 5-10 स्टडी करो, केस स्टडी करो, एंड एक टाइम लिमिट बनाओ कि विद इन अ मंथ आई विल टेक अ डिसीजन। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप कई साल तक डायलेमा में रहोगे, ना वहां खुश रहोगे ना यहाँ पे आ पाओगे, एंड वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। ये मेरी टिप। In last, I want to ask a question regarding your personal life. Like life in US or life in India, what's best for you? What wins for you? And why? ओके, सी लाइफ इन यूएस वाज आल्सो गुड। मैं यहाँ हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां बोलूंगा मैं अच्छे से नहीं था, जो बात है सो है। इट वाज गुड, बट इट इज गुड फॉर इनिशियल फ्यू ईयर, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। या तो उसको आप मैनेज करो कि हर साल इंडिया हो, कुछ भी हो हर साल इंडिया आना है, क्या रिचार्ज होके चले जाते हो यहाँ से, है ना, सबसे मिल लेते हो, पेरेंट्स को बुला लेते हो, तो क्या है रहेगा, तो आप वहां पर रह सकते हो, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा है और जो वीजा की कंडीशन अभी चल रही है तो एक अनस्टेबिलिटी रहेगी, तो वहां पे ना वैसे हैप्पीनेस था मैं घूमना घामना, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है यूएस, घूमने में ही 3-4 साल लग जाएंगे, एक एक जगह जाओ। बट जब सब घूम लोगे आप, दोस्ती यारी भी हो गई और दोस्त भी चला गया, तो उसके बाद क्या करोगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ गोल्स बनाए फाइनेंशियल, वो भी। तीसरी बात, वो गोल मूविंग गोल्स है, मतलब मूविंग टारगेट है। पहले ये बनाया, अब कुछ और बना लिया, अब उसके बाद वो खत्म ही नहीं हो रहा। Never ending. नेवर एंडिंग, एक इट्स अ लूप, आप लूप में फंसे हुए हो। वो लूप में नहीं फंसना है, क्योंकि लाइफ एक ही है, और हर फेज देखना चाहिए, वहां का भी देखना चाहिए, एंजॉय करके, एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइफ। वो एंजॉय करो, हो सकता है 3-4-5 साल 10 साल में आप स्टेबल होने के बाद फिर से लगे कि यार लेट्स डू समथिंग न्यू, क्योंकि एक ही लाइफ में आप सब कुछ देख एक्सप्लोर And for connecting with us and sharing your views with our कर। audience. And sure, we will try to make another podcast regarding financial things so people will get know more about this. Thank you for your time. श्योर।